Hello everyone. So we have another set for you guys today, and the set is on distribution. So before we start the set, let me give you a brief overview of what we are doing on a daily basis. So these are the things which we are giving to all the aspirants who are preparing for any kind of aptitude exams. So the morning starts with an article and a newspaper on our Facebook group. Then at 10 a.m. we have an RC set. So the PDF is uploaded on Facebook group and video explanation is uploaded on YouTube. So you can download the PDF from Facebook group, and then after solving that you can go and check the explanation and solution on YouTube. Similarly, at 12 noon we give you a DILR set, at 2 p.m. another DILR set, at 4 p.m. one more RC set. At 6 p.m. every day we do vocabulary quiz, and it's a great way of improving your vocabulary. So make sure that you participate in all 6 activities on a daily basis religiously. Other than that, at 8:30 p.m. we do have FB or Insta quiz. These quizzes vary from different topics like it can be computer science, it can be science, it can be technology, it can be geography, it can be current affairs, it can be GK, it can be anything. So it can be a Bollywood quiz. So it's a fun based quiz at 8:30 p.m. Other than these things, we do have live classes from 8 to 10 in the morning. So these classes are only for our enrolled students, and we take care of all the concepts and everything in these classes. So if you like our explanations, you like our way of teaching and everything, and you want to be part of these live classes, make sure to call and WhatsApp on this number, so we can give you further information and knowledge about the live classes. Let's not waste time and start with the set. So today's set is on distribution. 5 students, Ankit, Pawan, Kiran, Ranjit and Shravan, enrolled for a test series which comprised exactly 5 tests numbered 1701, 1702, 3, 4 and 5, conducted in that order. However, each student wrote exactly 4 tests and each test was written by exactly 4 tests. So out of these 5 tests, 5 students, so each student has written only 4 tests and each test is written by 4 students. Further, it is known that for any test, the average score of the students who wrote that test was not more than 70. So it can be 70, but it can't be more than 70. The table below provides the marks scored by each student in the 4 tests that he wrote. The 4 tests are labeled 1, 2, 3 and 4, which represent the first, second, third and fourth test written by the respective student. So we'll create a different grid on the basis of this information. So we have student, then we will have 1701, we'll have 1702, 1703, 1704 and 1705. We have Ankit, then we have Pawan, we have Kiran, then we have Ranjit, and last we have Shravan. So these are the 5 students. Now, how we are going to tackle this thing? So one thing which is given that these tests are written in the same order. तो अगर अंकित ने कोई 4 टेस्ट लिखे हैं तो इसी ऑर्डर में लिखे होंगे, यानी कि 50, 63, 63 एंड 80. अब एक चीज़ गिवन है कि हर स्टूडेंट ने 4 टेस्ट लिखे हैं और हर टेस्ट को 4 स्टूडेंट ने लिखा है. इसका मतलब हर कॉलम में एक x आएगा और हर रो में एक x आएगा. और जो दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एवरेज ऑफ टेस्ट इज नॉट मोर देन 70, यानी कि किसी भी कॉलम का सम जो है दैट कांट बी मोर देन 70 इंटू 4, दैट इज 280. इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सो जो 1701 टेस्ट है उसके पास ये 5 ऑप्शन हैं. कौन कौन से ऑप्शन है? 50 आ सकता है, 64 आ सकता है,
85 आ सकता है, 82 आ सकता है और 77 आ सकता है। इसमें से कोई एक नंबर होगा जो यहाँ पे नहीं आएगा और वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इनको सबको ऐड कर लेते हैं। सो 7 + 2 9 + 5 14 + 4 18, 1 goes as carry, 5 + 1 6 + 6 12 + 8 20 + 8 28 + 7 35, सो दिस इज 358। और हमने कहा था कि जो सम है वो 280 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सो 280 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से तो बचेगा कितना, 78 बचेगा। यानी कि इन नंबर्स में से हमें 78 या 78 से बड़ा नंबर हटाना है, तब जाके इस कॉलम का जो एवरेज है वो 70 या 70 से नीचे होगा। वॉज नॉट मोर देन 70, इसका मतलब 70 हो सकता है, तो 70 या 70 से नीचे होगा। तो हमें इस 78 या उससे बड़ा नंबर हटाना है। नाउ इफ यू गो थ्रू ऑल दीज नंबर्स, there are only two numbers 85 and 82 which can be moved further। तो हमें ये पता चल गया कि 50 फिक्स्ड है, 64 फिक्स्ड है और 77 फिक्स्ड है। इन दोनों में से कोई नंबर यहाँ पे आगे शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब हम 1702 कॉलम पे जाते हैं। 1702 कॉलम में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती हैं? 63 आ सकती है, बिकॉज 50 के बाद 63 है, 64 के बाद 51 है, 85 आ सकता है या फिर 85 के बाद 77 है। तो पहले हम मान लेते हैं कि 85 यहाँ पे फिक्स्ड है, तो 77 कर दिया। और 82 अगर यहाँ पे नहीं है, जिस केस में हमने पहले केस में अगर हमने 85 को यहाँ पे फिक्स किया है, हमें पता है कि ये दोनों वेरिएबल हैं, तो पहले केस में हम 85 को फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे 77 आ सकता है। एंड दिस 82 विल डेफिनेटली कम हियर। तो 82 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, बिकॉज हर रो में सिर्फ एक x हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो बाकी सारी वैल्यू फिक्स्ड हो जाएंगी। और 77 यहाँ पे है, तो 88 यहाँ पे पॉसिबल है। तो अब इनको ऐड करके देखते हैं। सो 8 + 2 10 + 7 17 + 1 18 + 3 21, 2 goes as carry, 6 + 2 8 + 5 13 + 7 20 + 8 28 + 8 36, सो 361। इसमें से हम 280 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना बच रहा है, ये बना ही देते हैं आगे तक। सो 280 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 8 and 0, यानी कि 81 या उससे बड़े नंबर को हमको यहाँ से हटाना है। तो आउट ऑफ ऑल दीज नंबर्स द ओनली नंबर दैट वी कैन चेंज इज 88। इसका मतलब हमको 88 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हमने 85 को यहाँ पे फिक्स किया तो ये पॉसिबिलिटी तो है, अगर हम 85 को यहाँ पे फिक्स करते हैं, और उस केस में 88 को मूव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कहीं पे नोट कर लेते हैं कि 85 रखा है, तो 88 को शिफ्ट करना है। दूसरा केस बना लेते हैं, अगर हमने 85 की जगह 82 को फिक्स कर दिया 1 पे, तो यहाँ पे 82 की जगह अब कौन सा नंबर आएगा, 68 आएगा। और 85 यहाँ पे अगर नहीं है तो 85 यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर हमने 82 को फिक्स किया है, इसका मतलब 85 यहाँ पे नहीं होगा, तो किरण ने बाकी चारों टेस्ट दिए होंगे और इसी ऑर्डर में दिए हैं, तो 85 हैज़ टू कम ऑन 1702। अब इसके हिसाब से अगर हम जोड़ें तो कितना सम मिल रहा है, 8 + 8 16 + 5 21 + 1 22 + 3 25, सो दिस इज 5, 2 goes as carry, 6 + 2 8 + 5 13 + 8 21 + 6 27 + 8 35, सो 355 सब्ट्रैक्ट करेंगे 280 तो क्या मिलेगा हमें, सो वी विल गेट 5 and 7 and 0। दैट मीन्स 75 या उससे बड़ा नंबर हमें आगे की तरफ शिफ्ट करना है। तो हमारे पास आउट ऑफ ऑल दीज कौन सा ऑप्शन बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 88 बच रहा है। तो इसका मतलब हमें ये श्योर हो गया कि चाहे 85 को फिक्स करो या 82 को फिक्स करो, 88 यहाँ पे शिफ्ट होगा ही होगा। तो इसको हमने क्रॉस कर दिया और 88 को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। नाउ वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर, नॉट कंफर्म्ड दैट 85 यहाँ पे है या 82 यहाँ पे है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे कौन सी दो वैल्यू आएंगी। अब अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पे हट गई है, इसका मतलब ये सब तो फिक्स्ड है। सो 50 and 63 इज फिक्स्ड, 64 and 51 इज फिक्स्ड, 77 इज हियर फिक्स्ड, और ये पूरी की पूरी रो अब हमें पता चल गई है। सो दिस इज 65 एंड दिस इज 71।
क्योंकि हर रो में सिर्फ एक ही x हो सकता है। उसी तरीके से इस कॉलम में अब या तो 85 यहाँ पे आ जाएगा या फिर 82 आ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली दूसरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। 1703 को देखें तो हमारे पास ऑप्शन है 63 का, वी हैव 57, देन अगेन वी विल वर्क ऑन दोज टू केसेस। तो अभी हम पहले 82 को यहाँ पे अगर फिक्स रखते हैं तो ये यहाँ पे नहीं होगा, 85 यहाँ पे हो जाएगा, दैट विल गिव अस 77 हियर, बिकॉज किरण के में क्या है 85 फिर 77 एंड सो ऑन, तो 77 यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से 82 फिक्स्ड है, 68 यहाँ पे है, एंड देन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ कीपिंग 68 हियर। नाउ लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम। तो अगर हम इनको ऐड करें तो 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 7 23, 23 प्लस 7 30, 30 प्लस 3 33, सो 3 यहाँ पे आ गया, 3 गोज एज कैरी, 6 प्लस 3 9 प्लस 5 14 प्लस 7 21 प्लस 6 27 प्लस 8 35, सो 353, अगेन 280 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 73। अब देखो इनमें से 73 कहाँ पे मिल सकता है हमें, सो दिस इज नॉट 73, दिस इज नॉट 73। नाउ दीज टू वैल्यूज आर ओनली ग्रेटर देन 73, एक ये है और एक ये है। बट अगर ध्यान से देखो तो हमने किरण वाले में एक x लगा दिया है, इसका मतलब ये यहाँ पे हट नहीं सकता, ये तो फिक्स्ड है, और उसी तरीके से श्रवण वाले में हमने एक x लगा दिया है तो 88 भी फिक्स्ड है। सो फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स वी कैन से कि 82 फिक्स नहीं हो सकता है, बिकॉज जब हमने 82 को फिक्स किया तो हम 1703 कॉलम को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर 82 फिक्स नहीं है तो इसका मतलब 85 फिक्स्ड हो गया, और ये कैंसिल हो गया यहाँ से, ये यहाँ पे आ गया। सो रंजीत वाली रो हम पूरी फिल कर सकते हैं। सो 82, 68, 68 एंड 34। किरण वाली रो में ये कॉलम में तो 85 के बाद 77 आना ही आना है, बिकॉज इस कॉलम में एक x हम पहले से लगा चुके हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं 77 के बाद क्या ऑप्शन है, 68। आउट ऑफ दीज नंबर्स वी हैव ऑप्शन ऑफ रिमूविंग ओनली दीज 3 नंबर्स, ये दोनों तो फिक्स्ड हैं, तो फिर से अब ऐड करना पड़ेगा हमें टू फाइंड आउट द न्यू नंबर, टू न्यू वैल्यू। सो 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24 प्लस 7 31 और 3 34, 3 goes as carry, 6 plus 3 9 plus 5 14 plus 6 20 plus 6 26 plus 8 34, 280 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिलेगा 4 and 64। तो अब इन 3 नंबर्स में से हमको देखना है कि 64 या उससे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सिर्फ एक ही नंबर हमें दिख रहा है विच इज 68, तो इसको हम यहाँ से मूव कर देंगे, 68 यहाँ पे आ जाएगा, और किरण वाला रो हम पूरा का पूरा फिक्स कर सकते हैं। नाउ बिटवीन द फर्स्ट 2 रोज एक नंबर यहाँ पे आएगा और एक नंबर यहाँ पे आएगा, मतलब एक जगह क्रॉस आएगा और दूसरा नंबर आएगा। सो सेम वे हम इसको फिल करेंगे। सो 1704 के लिए हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, सो वी हैव 80 एंड वी हैव 71, ये 3 के तीनों तो फिक्स्ड हैं, इन दोनों में कोई चेंज होगा। सो लेट्स ऐड देम, 8 plus 8 16 plus 1 17 plus 5 22, 2 goes as carry, 8 plus 2 10 plus 7 17 plus 6 23 plus 6 29 plus 6 35, सब्ट्रैक्ट करेंगे 280 तो क्या मिलेगा 2 5 8 7 एंड 0। तो 72 या उससे बड़ी वैल्यू को हमको हटाना है इस कॉलम से, तो एक ऑप्शन है हमारे पास 80, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। सो 80 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। इसका भी सम निकाल लेते हैं। सो 4 plus 1 5, 7 plus 3 10 plus 9 19 plus 8 27, so this is 275 which satisfies the condition. So now we can calculate the correct sum of each of these columns, और उसको हम यहाँ पे लिख देंगे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। So 5 plus 4 9 plus 7 16, 1 goes as carry, 6 plus 6 12 plus 8 20 plus 7 27, 3 plus 1 4 plus 7 11 plus 2 13, 1 goes as carry, 6 plus 1 7 plus 5 12 plus 7 19 plus 8 27, 7 plus 3 10 plus 8 18 plus 8 26, 2 goes as carry, 6 plus 2 8 plus 5 13 plus 6 19 plus 8 27, 9 plus 8 17 plus 5 22, 2 goes as carry, 9 plus 6 15 plus 6 21 plus 6 27।
तो ये हमारे पास एग्जैक्ट सम आ गए हर कॉलम के और एग्जैक्ट वैल्यूज आ गई। अब हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। सो लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एनी टेस्ट व्हाट इज द मिनिमम टोटल स्कोर ऑफ द 4 स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड द टेस्ट। तो मिनिमम स्कोर कौन सा है इन पांचों में से? 272 है। सो आंसर क्या होगा? 272। Now the second one, who among the following did not attempt 1705? So we can see that Pawan didn't attempt 1705. So answer क्या हो जाएगा? Pawan. Third, who scored the maximum marks in 1704? So 1704 में maximum marks किसके हैं? 71. That is Pawan again. So answer is option number C, Pawan. Now fourth, who among the following did not attempt any 3 consecutive tests out of the 5 tests? सो अंकित ने 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट किए हैं, पवन ने किए हैं, सिर्फ किरण ने नहीं किए हैं। जिसने बीच वाला 1703 कैंसिल किया है उसने 3 कंसेक्यूटिव नहीं किए हैं। सो आंसर इज किरण, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सो आई थिंक यू हैव एंजॉयड द एक्सप्लेनेशन, यू मस्ट हैव एंजॉयड द एक्सप्लेनेशन एंड कितनी ईजिली एक सेट हो सकता था। सो द आइडिया वॉज टू क्रिएट द ग्रिड प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ this set and using all the information given in the set. So guys, if you have enjoyed it and अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू रिसीव ऑल द notifications as and when any video is published. Also share it to all your friends. So I am expecting and I am setting a target and I am requesting you guys that everyone who is watching this video, please share it to at least 20 students, 20 friends of yours, 20 aspirants of any kind of aptitude exam. That's it guys. Happy learning. Enjoy your day.